Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, today we will discuss the second part of male reproductive system. In our previous lecture, I have discussed, you have learned that the testes in human beings, in most of the mammals, are extra abdominal. That is, these are located in the scrotal sacs outside the abdomen. And this is important, as I have discussed earlier, because for the spermatogenesis, for the development of the sperms, for the maturation of the sperms, those require 2 to 3 degree less temperature than the body temperature. How that is regulated, I will discuss later on. First, have a brief review of the yesterday's lecture. These testes, there's a pair of testes in males. These are located in the scrotal sacs. I have discussed it in your previous lecture. You have learned that these testes are formed in the abdominal cavity. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान फीटस में ये टेस्टिस जो हैं ये डेवलप होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, एंड देयर डेवलपमेंट बिगिन ड्यूरिंग 7th and 8th week of the pregnancy, and then they start descending, they start migrating towards the scrotal sacs in the 7th or 8th month of the pregnancy. And birth से पहले these completely migrate into the scrotal sacs via a canal that is known as inguinal canal. उस canal को कहते हैं inguinal canal. इस inguinal canal के जरिए ये testes जो है these descend into the scrotal sacs. तो हम कह सकते हैं inguinal canal जो है एक connection है, inguinal canal एक connection है between the abdominal cavity and the cavity of the scrotal sacs. स्क्रोटल सैक्स के अंदर जो कैविटी है और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को कहते हैं इंग्विनल कैनाल. और कैविटी जो है, ये कैविटी जो है इसके अंदर स्क्रोटल सैक्स के अंदर, इस कैविटी को हम कहते हैं वेजिनल सीलूम. क्या कहते हैं? वेजिनल सीलूम. याद रखिएगा. और ये वेजिनल सीलूम जो है इट इज फिल्ड विद ए टिश्यू. टिश्यू का नाम है हाइड्रोसील. टिश्यू का नाम है हाइड्रोसील. और ये टेस्टिस जो है इट इज सेपरेटेड बाय द स्क्रोटल सैक. द स्क्रोटम इज सेपरेटेड इन द मिडल, इज सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन. उस पार्टीशन को कहते हैं स्क्रोटल सेप्टम. तो स्क्रोटल सेप्टम क्या है? It is a partition which separates, which divides the scrotum into two compartments. Okay. और ये scrotum जो है it provides healthy environment. इसका function क्या है? It provides healthy environment for the development, for the maturation of the sperms. कैसे? ये maintain करता है temperature 2 to 3 degree less than the body temperature. 2 to 3 degree less than the, तो हम कह सकते हैं ये एक्ट करता है एज थर्मो रेगुलेटर. कैसे? ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के जरिए टेस्टिस अटैच रहते हैं टू द एब्डोमिनल वॉल. स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर एक टिश्यू होता है, एक थिन मसल्स, स्पेशलाइज्ड मसल्स होती है. उन मसल्स का नाम है क्रेमेस्टर मसल्स. उनका नाम है क्रेमेस्टर मसल्स. इसी तरह जो स्क्रोटम है, beneath the skin there is one more type of muscle that is known as Dato's muscle. Please do remember, ये Dato's muscle, क्रेमेस्टर मसल, दोनों मसल्स जो हैं, both of these muscles, these are, as I have already discussed, these are smooth involuntary muscles.
and these are sensitive to temperature. These are sensitive to temperature. I mean, in response to the temperature, these muscles contract or relax. गर्मियों के दौरान, during summer, these muscles relax, and during winter, these muscles contract. ये scrotum को contract करते हैं. These bring the testes closer to the abdomen to maintain the temperature for normal, for healthy spermatogenesis. Okay. इसी तरह मैंने कहा कि testes जो हैं, these remain attached to the abdominal wall through spermatic cord. Once they descend, after they descend into the scrotal sac, into the scrotum, these are fixed in the scrotal sac through a fibrous band, that is known as gubernaculum. उस fibrous band को कहते हैं gubernaculum. Okay, अब देखेंगे हम histology of testes. Histology of testes. You see, each testis, there is a pair of testes, and each testis is covered by a thick layer. Each testis is covered by a thick layer. इस thick layer को कहते हैं tunica albuginea. इसको कहते हैं tunica albuginea. Outside this layer, outside tunica albuginea, there is one more layer. मैं encircle करता हूं. इस लायर को कहते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस. इसको कहते हैं ट्यूनिका, दिस इज मोर शाइनी लायर. इसको कहते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस. एंड दिस ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है, इट एंटर्स इनटू द टेस्टिस. यहां देखिए, ये टेस्टिस के अंदर एंटर करता है, कुछ इनफोल्ड्स बनाता है. उन फोल्ड्स को कहते हैं टेस्टिक्युलर सेप्टा. उनको कहते हैं टेस्टिक्युलर सेप्टा. So testicular septa are the infolds formed by the tunica albuginea, and these septa, testicular septa जो है, ये डिवाइड करता है, टेस्टिकुलर सेप्टा डिवाइड करता है टेस्टिस को इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स. ये टेस्टिस को बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में बांट देता है, डिवाइड करता है. उन कंपार्टमेंट्स को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ये देखिए, ये एक लोब्यूल है, ये एक लोब्यूल है, ये एक लोब्यूल. इस तरह से एक टेस्टिस में ऐसे 250 या 200 से 300 के लगभग ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं इनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल, TL मैंने लिखा, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में ऐसे 1 से 3 हाईली कन्वोल्यूटेड, हाईली क्वाइलेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाईली कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं. उनको कहते हैं सिम्निफेरस टिब्यूल्स. उनको कहते हैं सिम्निफेरस टिब्यूल्स. ये देखिए आप, दिस इज हाईली क्वाइलेड, दिस इज हाईली कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर. इसको कहते हैं सिम्निफेरस टिब्यूल्स. सिम्निफेरस टिब्यूल्स के बारे में आपको याद होना चाहिए, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. दिस इज द एक्चुअल साइट इन द टेस्टिस वेयर स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स place. We'll discuss in the next lecture or after some. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, ये फिर ओपन करता है into a straight tube. ये देखिए, it opens into a straight tube. ये स्ट्रेट ट्यूब क्या है? इस स्ट्रेट ट्यूब को कहते हैं ट्यूब्यूलाई रेक्टाई. इसको कहते हैं ट्यूब्यूलाई रेक्टाई. और ये ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, इनके ट्यूब्यूलाई रेक्टाई जो है, ये ओपन होते हैं into rhyty testes. Into rhyty testes. These are the network of these tubules. इनको कहते हैं rhyty testes. A portion where seminiferous tubules open through tubuli recti. Through tubuli recti. और फिर rhyty testes जो है, यहां से arise होते हैं some fine tubules. उनको कहते हैं vasa efferentia. क्या कहते हैं? vasa efferentia. And these vasa efferentia transport, these vasa efferentia carry the
spermatozoa, sperm is formed in the seminiferous tubules into the head region of the epididymis. Epididymis is again a highly coiled structure. This is again a हाईली क्वाइलेड स्ट्रक्चर. एपिडाइडमस जो आप देख रहे हैं ये फिर एक हाईली क्वाइलेड स्ट्रक्चर है 6 to 8 feet लॉन्ग. तो इसके 3 रीजन्स हैं, 3 पोर्शंस हैं. एक हेड रीजन, दिस वन, दिस हेड रीजन, फिर इसकी बॉडी और टेल रीजन. हेड रीजन को कहते हैं कैपट एपिडाइडमस. हेड रीजन को कहते हैं कैपट एपिडाइडमस. कैपट एपिडाइडमस. और इसकी बॉडी को कहते हैं कॉर्पस एपिडाइडमस. कॉर्पस एपिडाइडमस. और टेल रीजन को कहते हैं कॉर्डा एपिडाइडमस. कॉर्डा एपिडाइडमस. और एपिडाइडमस जो है दिस एक्ट्स एज टेम्पररी स्टोर ऑफ द स्पर्म्स for 18 to 20 hours. 18 to 20 hours. And during this period, इस period के दौरान क्या होता है? Sperms attain physiological maturity. Sperms attain physiological ripening. Seminiferous tubules में sperms develop तो होते हैं, वो एक खास किस्म का structure attain तो करते हैं, but these are not yet able to fertilize the एग. ये फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ये अटेन करते हैं, अचीव करते हैं इन द एपिडाइडमस. इस पोटेंशियल को कि ये फर्टिलाइज कर सकते हैं एग को, इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल राइपनिंग या इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी. और ये फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी जो है ये अटेन करते हैं कहाँ? इन द एपिडाइडमस. ओके. तो मैंने कहा अगर हम पाथवे रिमेंबर रखेंगे, पाथवे याद रखेंगे कि स्पर्म्स कहाँ बनते हैं, फिर कहाँ से कहाँ जाते हैं. ये बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से ये आगे जाते हैं इनटू ट्यूब्यूलाई रेक्टाई के जरिए, थ्रू ट्यूब्यूलाई रेक्टाई इनटू रेटी टेस्टिस. रेटी टेस्टिस से फिर थ्रू वैसा एफरेंशिया ये एंटर होते हैं एपिडाइडमस में, जहां ये टेम्पररली स्टोर होते हैं. 18 से 20 घंटों तक ये स्टोर होते हैं. फिर एपिडाइडमस जो है ये फिर ओपन होता है इनटू स्ट्रेट ट्यूब. इनटू स्ट्रेट ट्यूब. इसको कहते हैं वैसा डिफरेंशिया. इसको कहते हैं वैसा डिफरेंशिया. ओके. तो वैसा डिफरेंशिया जो है इट अगेन असेंड्स इनटू द एबिडोमेन. ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के जरिए ही, स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू ही ये असेंड करता है इनटू द एबिडोमिनल कैविटी में. एबिडोमिनल कैविटी में जाके ये कर्व बनाता है अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर. अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर. फिर आगे क्या होता है? आगे ये ज्वाइन करता है. आगे ये ज्वाइन करता है किसके साथ? सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ. सेमिनल वेसिकल के, फॉर एग्जांपल दिस इज सेमिनल वेसिकल. यहां से आता है क्या? वैसा डिफरेंशिया. यहां से ये डक्ट निकलता है इसका, तो ये ज्वाइन करता है इस डक्ट के साथ. ये जो कॉमन डक्ट बनता है फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द वैसा डिफरेंशिया एंड सेमिनल वेसिकल, इसको कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट. इसको कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट. ओके. तो इजैक्यूलेटरी डक्ट. फिर यूरिनरी ब्लैडर जो है ये ओपन होता है एंटीयूरेथ्रा में. ओके. इजैक्यूलेटरी डक्ट भी ज्वाइन करता है यूरेथ्रा के साथ. और यहां से इसको कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट. Urinogenital duct. It acts as a common pathway, as a common passage for the transport of both sperms as well as the urine. Okay. उसके बाद हम देखेंगे the section, transverse section of the testes. तो हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसवर्स सेक्शन
ऑफ द टेस्टिस। ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पेन है, अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, ये कट जो है इसको कहते हैं ट्रांसफर सेक्शन। अगर मैं इसको वर्टिकली ऐसे कट करूं तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, LS। तो हम कट करते हैं टेस्टिस को ट्रांसवर्सली, ओके, ये कहलाता है ट्रांसवर्स सेक्शन। उस सेक्शन को अगर हम स्टडी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, हम देख रहे हैं ये टेस्टिस जो है, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये स्ट्रक्चर्स जो आप यहाँ देख रहे हैं जो बने हुए हैं, एक इनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो आपने यहाँ देखे, अगर हम इसको ट्रांसवर्सली कट करेंगे, you will see these circular structures, these are seminiferous tubules। तो ठीक है, तो seminiferous tubules जो है, these are scattered in the connective tissue। ये एक connective tissue में ऐसे बिखरे हुए हैं हर तरफ से, यहाँ भी connective tissue है। इस connective tissue को कहते हैं interstitial tissue, interstitial tissue, ओके। और फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, इट इज lined by germinal epithelium। seminiferous tissue is lined by GE लिख रहा हूं मैं, germinal epithelium, ओके। germinal epithelium के अंदर 2 types of cells होती हैं। germinal epithelium के अंदर 2 types of cells होती हैं, एक germ cells और सर्टोली सेल्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये मेजर सेल्स, स्मॉल सेल्स, दीज आर जर्म सेल्स, दीज आर जर्म सेल्स। तो ये क्या होते हैं? ये जर्म सेल्स, या इनको कहते हैं हम स्पर्मेटोगोनिया, इनको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। These have the potential, these have the ability to undergo meiosis, undergo मियोसिस। इनके अंदर मियोसिस होती है, इन्हीं के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के जरिए ये डेवलप होते हैं इनटू स्पर्म, इनटू स्पर्मेटोजोआ, हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ। रिमेंबर, ये जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया जो है, ये डिप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। फिर मियोटिक डिवीजन के जरिए इनके अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है, तो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है टू हाफ, ये बनाते हैं हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ। ये so major cells, these are cuboidal cells, इनको कहते हैं the germ cells। इसके अलावा कुछ cells, there are some cells which are columnar cells, ये somatic cells होती हैं, बीच बीच में सोमैटिक सेल्स होते हैं, कुछ कॉलमनर बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, उनको कहते हैं हम सर्टोली सेल्स, उनको कहते हैं सर्टोली सेल्स। इनको नर्व सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि जब स्पर्म डेवलप होता है, ये डेवलपिंग स्पर्म्स जो होते हैं, ये इनका हेड रीजन एम्बेड होता है into these Sertoli cells, into these nerve cells, so that it will obtain its nourishment from there, okay। इसके अलावा देखेंगे आप between the seminiferous tubules, not inside the seminiferous tubules। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये तीसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान, यानी इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर, इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर एक और टाइप होता है सेल्स का, उनको कहते हैं लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स भी, इनको कहते हैं लीडिंग सेल्स भी। ये लीडिंग सेल्स जो होते हैं, ये कहाँ होते हैं? इंटरस्टिशियल टिश्यू में। दीज आर एंडोक्राइन सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स, इनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स होते हैं फॉर LH, फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगर आपको याद होगा स्पर्मेटोजेनेसिस का जब हमने हार्मोनल कंट्रोल डिस्कस किया, मैंने बताया था कि गोनेडोट्रोपिन्स ने पिट्यूटरी ग्लैंड से जो
ये हार्मोन्स LH है या FSH है, इनको कहते हैं गोनेडोट्रोपिन्स, बिकॉज दिस डायरेक्टली अफेक्ट द गोनेड्स। तो LH का रिसेप्टर होता है लेडिक सेल्स के ऊपर। तो इन रेस्पॉन्स टू LH, इन रेस्पॉन्स टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये लेडिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन्स, ये प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन्स। और मेजर एंड्रोजन जो है दिस इज टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। एक और बात, लास्ट पॉइंट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कहता हूं कि जो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये होते हैं सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ये होते हैं सेंसिटिव टू टेम्परेचर। लेकिन जर्म सेल, ये लेडिक सेल्स जो हैं, दीज आर नॉट सेंसिटिव टू टेम्परेचर। यानी अगर किसी के अंदर क्रिप्टोऑर्गेनिज्म है, इफ testes are not able to descend into the scrotal sacs, so spermatogenesis will be affected. The male will not be fertile, वो fertile नहीं होगा, लेकिन जो बाकी मेल कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर डेवलप होंगी। रीजन ये है कि ये लेडिक सेल्स जो हैं दीज आर नॉट सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ये मुतासर नहीं होंगे। टेस्टोस्टेरोन विल बी प्रोड्यूसड, ये टेस्टोस्टेरोन या मेल सेक्स हार्मोन इसके अंदर मेल कैरेक्टर्स डेवलप करेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।